Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. बताइए कितनी मजेदार नमाज है کہ گھر میں میاں بیوی اگر جماعت کرانا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ بیوی کے ساتھ جماعت کرائے، اس کو جماعت کا انشاءاللہ اجر مل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا۔ بہت ہی اہم اور خاص ویڈیو لے کر پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے گھر سے مسجد بہت دور ہے۔ میں نماز پڑھنا بھی جانتا ہوں، پڑھانا بھی جانتا ہوں، تو کیا میں اپنے گھر کے اندر بیوی کی، ماں کی، بہن کی، بچوں کی امامت کر سکتا ہوں؟ یعنی اپنے گھر کے اندر ہی سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے میں آگے امام بن کر نماز پڑھا سکتا ہوں یا نہیں؟ ایک اہم سوال ہے۔ جی ہاں ناظرین، آج ایسا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ رمضان کے موقع پر تقریباً گھر کے سارے افراد نمازی بن جاتے ہیں۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے، ماں ادھر نماز پڑھ رہی ہے، بہن ادھر پڑھ رہی ہے، بھائی ادھر پڑھ رہا ہے، بیٹا ادھر پڑھ رہا ہے، بیٹی ادھر پڑھ رہی ہے، بیوی اور کہیں پڑھ رہی ہے، تو کیوں نہ ہم سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں، ان میں سے کوئی ایک امام بن جائے اور سب کو نماز پڑھائے؟ تو کیا ایسا کرنا درست ہے یا نہیں ہے؟ ایک اہم سوال ہے۔ ساتھ ہی میں اس ویڈیو میں اور ایک اہم چیز دکھاؤں گا کہ گھر میں کسی مرد کو نماز پڑھانا نہیں آتا ہے، بیٹی عالمہ ہے یا بیوی عالمہ ہے یا گھر کی کوئی اور عورت عالمہ ہے، وہ امام بن سکتی ہے کہ نہیں؟ اس سوال کا بھی جواب آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے اور سننے کے لیے ملنے والا ہے۔ تو ناظرین، ویڈیو بہت ہی اہم ہے، دلچسپ ہے۔ یہ دونوں سوالوں کا جواب ہم مختلف علماء کی زبانی آپ کو سنائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ایک ایسی مزیدار نماز دکھاتے ہیں جہاں عورت امام ہے، پیچھے مقتدیوں میں خواتین بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، مرد بھی ہے، لڑکے بھی ہیں، سارے ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر نماز کس طرح سے پڑھتے ہیں۔ چلیے پہلے وہ نظارہ بھی کر لیجئے۔ رسول اللہ کے زمانے میں عورتیں پہلے آتی تھی، اس لیے کہ اسلام اس وقت قلیل تعداد میں تھا، کم تعداد میں تھا، اور جب صحابہ کے زمانے میں، خصوصاً حضرت عمر کے زمانے میں جب مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تو اس وقت منافقین کا طبقہ بھی ایک زیادہ تھا، تو عورتوں کے لیے کچھ معاملات ہوئے، تو حضرت عمر نے پابندی لگائی کہ عورتوں کو مسجد میں نہ آنے دیا جائے، اور اس پر صحابہ اکرام کا اجماع ہو گیا کہ جب وہابیوں نے اپنی عورتوں کو مسجد میں بلایا تو امریکہ میں ایک عورت کھڑی ہوئی، اس نے کہا کہ جب عورت مسجد میں آ سکتی ہے تو اگر اس کو نماز پڑھانا آتا ہو تو نماز کیوں نہیں پڑھا سکتی؟ تو چنانچہ اس نے نماز پڑھائی۔ اب آئیے ذرا نماز دیکھیے کیسے پڑھا رہی ہے۔ Yard prayer is here today as well. She does the traditional call to prayer, something else that women don't normally do. Bismillahirrahmanirrahim. Then the moment that'll go down in history. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھی دے رہی ہے وہاں، اور خاص بات کیا ہے پتہ ہے؟ مرد عورت ساتھ میں مل کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب بتائیے کتنی مزیدار نماز ہے۔ عورت نماز کی امامت کر سکتی ہے۔ ڈنمارک میں ایک مسجد کھلی ہے جہاں صرف خواتین ہی نماز پڑھتی ہیں اور امامت بھی خاتون کراتی ہیں۔ اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے؟ اعتبار سے کیا مطلب؟ شریعت کے اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے؟ مسز اسلم، نیدرلینڈ۔ دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ آپ نے خواتین کی امامت کی ہے، لیکن یہ پوری زندگی میں ایک اسلامی تاریخ میں واقعہ ہے۔ بعد میں اس پر صحابہ نے بھی عمل نہیں کیا، خود حضرت عائشہ نے بھی عمل نہیں کیا، فقہاء کرام نے بھی اس کو جائز نہیں لکھا۔ اس لیے یہاں بھی یہی ہے کہ یہ ان کو نماز سکھانے کے لیے ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے یہ عمل کر لیا ہوگا، تو یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ تو چونکہ اس بعد میں بھی کسی نے بھی عمل نہیں کیا، خلفائے راشدین کا دور آیا ہمیشہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی عام معمول یہی تھا کہ خواتین مردوں کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتی تھیں، اور اگر خود سے پڑھتی تو اخپل طریقے سے، جسے پشتو میں کہتے ہیں، اپنے طور پر پڑھتی تھی، جماعت کی نمازیں نہیں ہوتی تھی۔ تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر عورت کی امامت کر لے تو حضرت عائشہ کی اس حدیث کی وجہ سے نماز تو بہرحال ہو جائے گی، لیکن یہ کہ یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے اسلام میں، اور اس کو معمول بنا لینا بہرحال ٹھیک نہیں ہے۔ تو ڈنمارک میں اگر ایسا ہو رہا ہے تو زندگی میں ایک آدھ دفعہ ہو گیا۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا یہ
दुश्मनान इस्लाम की एक साजिश है, शरीयत मोहम्मदी को कमज़ोर किया जाए और मुसलमानों को आपस में तकसीम किया जाए। बहरहाल उस सवाल का जवाब वीडियो में आपको मैं देने वाला हूँ उलमा के ज़रिए कि घर में बीवी बच्चों की इमामत करना कैसा है। तो वीडियो बहुत अहम है, जाइएगा नहीं, देखिए, बहुत ही अहम सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है। तो घर में बिल्कुल अपनी बीवी के साथ पढ़े भाई, अपनी बीवी के साथ जमात कराए, उसको जमात का इंशाल्लाह अजर मिल जाएगा। लेकिन उसका तरीका क्या है कि बीवी उसके साथ नहीं खड़ी होगी, बीवी उसके पीछे खड़ी होगी, ठीक है। लेकिन अगर उसका बेटा है कोई छोटा भी है उसको साथ खड़ा कर ले, लेकिन बीवी ये नहीं कि भाई ये तो बीवी है कोई बात नहीं मैं इसको साथ ही खड़ा कर लूँ, चिपका लूँ इस तरह, नहीं। बीवी उसके पीछे खड़ी होगी और ख्वातीन भी होंगे पीछे खड़ी होंगी और जो है मर्द उसके साथ होंगे, या अगर 2-3 मर्द तो फिर उसके पीछे 3 मर्द और उसके पीछे ख्वातीन। अगर घर में मर्द और औरत हैं बिल्कुल जमात कर सकती है, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन जमात में मर्द इमाम बने, औरत को इमाम न बना दे। मुफ्ती साहब, क्या खातून तरावी की इमामत करा सकती है जिस खातून ने हिफ्ज़ किया हुआ है और वो हाफिज़ा है? भाई मोहम्मद आरिफ माशाल्लाह बहुत बेहतर, एक बच्ची ने कुरान करीम को हिफ्ज़ किया है, खातून ने हिफ्ज़ किया है, उसको सलाम पेश है, खराज अकीदत पेश है, लेकिन वो तरावी की इमामत करे, उसके पीछे ख़वातीन ठहरें, छोटे बच्चे ठहरें, ये शरीयत इजाज़त नहीं देती। औरत न नबी बन सकती है न इमाम बन सकती है। औरत नबी भी जन सकती है, इमाम भी जन सकती है, लेकिन इस वक्त हुज़ूर पाक अलैहि सलाम आखिरी नबी है, यानी नबी जन सकती है, नबी बन नहीं सकती। इमाम जन सकती है, इमाम की माँ हो सकती है, खुद इमाम नहीं बन सकती, चाहे औरतों की इमामत क्यों न कर रही हो। हाँ, हाफिजा है, इसने अपने हिफ्ज़ को रिवाइज करना है, मजबूत करना है, दोहराना है, गिरदान करनी है, तो इसके लिए नवाफिल में पढ़े, सुन्नतों में पढ़े, वितर में पढ़े। ठीक हो गया? नहीं तो फिर कम अज कम एक खातून और साथ ठहराए और रोजाना की बुनियाद पे मंजिल अपने नवाफिल की पढ़ ले, बस रमज़ान मुबारक में वो उसका दोहरा ले। इसके लिए जमात का एहतमाम, इसके लिए सफ़े लगे, पूरी तरतीब, वो आ जाओ भाई फलां जगह औरतों को नमाज पढ़ाई जा रही है। ऐसा शरीयत इस्लामिया में, अहले बैत में, सहाबा कराम में, दीन इस्लाम में कहीं भी सबूत नहीं मिलता। उलमाए अहले हदीस और उलमाए देवबंद की बातों को सुनने और देखने के बाद अब देखते हैं कि उलमाए अहले सुन्नत इस बारे में क्या कहते हैं। चलिए देखते हैं हमसे मिलके। घर में मियाँ बीवी अगर जमात कराना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका है। अलबत्ता आप ये पूछ रही हैं तो घर में जमात का तरीका वही है कि ज़ाहिर है कि वक्त हो नमाज का तो पहले हस्बैंड को चाहिए अजान दे, अजान देने के बाद अगर नमाज की सुन्नतें वगैरह पढ़ने में ज़ोर है तो सुन्नतें भी 4 सुन्नतें अदा करे, उसके बाद जमात कराए। अगर सिर्फ मियाँ बीवी 2 ही हैं और कोई भी नहीं है तो ज़ाहिर है कि मियाँ थोड़ा सा आगे होगा, बीवी जो है उसके जो सीधी तरफ थोड़ा सा पीछे होगी, तो बीवी साथ खड़ी होगी, इस तरीके से नमाज़ पढ़ सकती है, क्योंकि महरम रिश्ता बीवी का है, लिहाजा वो साथ जो है बराबर थोड़ा सा पीछे होगी खड़ी हो सकती है, जैसे मर्द खड़े होते हैं, तो उसकी भी इजाज़त है। तो इस तरीके से, और जब इसकी भी इजाज़त है कि मियाँ आगे अगली सब में, बीवी पीछे सब के अंदर खड़ी है, तो इस तरह भी खड़े होकर नमाज़ पढ़ सकती है। लेकिन और भी ऐसी औरतें जो महरम नहीं हैं तो फिर ये 2 सफ़ का फासला दें, मुसल्ले पे इमाम है, उसके 2 सफ़े छोड़ के पीछे जो है वो औरतें हैं, मतलब खुद बीवी है, साथ शादी खड़ी है, या और कोई ऐसे उनकी सहेली है, तो ऐसे रिश्ते हैं, तो 2 सफ़ के फासले के साथ यूँ जमात की जा सकती है। अगर और कोई मर्द मौजूद है या बेटे हैं तो बेटा एक है तो वो मर्द के दाएं तरफ सीधी तरफ खड़ा होगा, ठीक है। और अगर 2-3 लोग हैं तो फिर मर्द के पीछे, इमाम के पीछे वो सब बना दे 3 लोग मसलन, और उसके पीछे जो है वो बाकी औरतें सब बना देंगी। इस तरीके से ये जमात की जा सकती है। मियाँ बीवी इकट्ठे नमाज पढ़ सकते हैं, अलबत्ता अगर आपस में जमात करें कि शौहर इमाम बने, बीवी उसकी मुक्तदी बने, तो फिर ये साथ साथ खड़े नहीं होंगे। जैसे वैसे अगर 2 बंदे नमाज पढ़ें तो तरीका ये है कि जो मुक्तदी है वो दाईं तरफ खड़ा हो जाए, इमाम बाईं तरफ खड़ा हो जाए। लेकिन अगर मियाँ बीवी अगर वो नमाज पढ़ते हैं तो उसमें फिर बाद जमात में ज़रूरी होगा कि मर्द आगे हो और औरत पीछे हो। अच्छा, यहाँ बीवी की तखसीस नहीं है, सगी माँ भी अगर साथ में नमाज पढ़ेगी और इक्तिदा में पढ़ेगी तो वो भी पीछे ही खड़ी होगी। तो अगर ये सूरत है तो ठीक है, और अगर इक्तिदा नहीं है, यानी बीवी अपनी नमाज पढ़ रही है और शौहर अपनी नमाज पढ़ रहा है, या भाई अपनी पढ़ रहा है, बहन अपनी पढ़ रही है, अब अगर वो बराबर में भी 2 मुसल्लों पे खड़े हैं या एक ही मुसल्ले पे फासले से खड़े हैं तो ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं। देखिए, अगर ये दोनों एक जमात नहीं करवा रहे फिर तो साथ साथ खड़े होने में कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं। और अगर जमात करवा रहे हो तो फिर ये हुक्म होता है कि औरत पीछे खड़ी होगी, शौहर के साथ नहीं खड़ी होगी, ठीक है। अगर 2 मर्द होते तो फिर तो ऐसे होता कि मर्द होता आगे और दूसरा बिल्कुल इसके साथ खड़ा होता, इस तरह के बस उसके टखने उससे पीछे होते, लेकिन साथ। इसमें अगर औरत साथ खड़ी हो जाएगी तो नमाज के फसाद का हुक्म होगा। अच्छा। लेकिन जब अलग अलग मुसल्ले पे नमाज पढ़ रहे हैं तो साथ खड़े होने में हर्ज नहीं है। ठीक। नाज़रीन, वीडियो बहुत अहम थी, इसका खुलासा मैं कर देता हूँ। वो खुलासा ये कि औरत तो बहरहाल किसी भी
सूरत में इमाम नहीं बन सकती। हाँ, बाज़ उलमा ने इसकी इजाज़त दी है कि अगर रमज़ान का महीना हो और वो औरत आलिमा हो या हाफिज़ा हो तो अपने घर की औरतों को जमा करके वो तरावी की नमाज पढ़ा सकती हैं, लेकिन वो आगे मर्दों की तरह इमाम नहीं बनेगी, बल्कि उसी सफ में खड़ी हो जाएंगी जिस सब में बाकी औरतें खड़ी हैं, वहीं बीच में खड़ी होकर के वो इमामत करवा सकती हैं नमाज तरावी की, लेकिन औरत मर्दों की इमामत नहीं कर सकती। साथ ही इसका भी खुलासा कर देता हूँ कि घर में जब भी आप नमाज पढ़ें तो बीवी को, बच्चे को, माँ को, बहन को, सबको इकट्ठा कर लें, वो सारे पीछे मुक्तदी बन जाएंगे, आप आगे इमाम बन के नमाज पढ़ा दें, जमात का सवाब मिल जाएगा। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि बच्चों में बेटी भी है, बेटा भी है, और दिगर लोगों में बहन है, माँ है, बीवी है, तो ये सारे खड़े कहाँ होंगे? तो वीडियो में मौलाना साहब ने बता ही दिया, लेकिन आपको बात समझ में नहीं आई तो मैं समझा देता हूँ कि आप आगे इमाम बन के खड़े हो जाएंगे और पीछे जितने मर्द हैं घर के वो खड़े होंगे, उसके बाद औरतें खड़ी होंगी। मान लो कि घर में मर्द एक ही है, तो वो कहाँ खड़ा होगा? वो इमाम के बगल में दाहिना साइड खड़ा होगा, ये चीज याद रखिएगा। और बाकी औरतें कहाँ खड़ी होंगी? पीछे खड़ी हो जाएंगी। बिल्कुल नाबालिग से छोटा बच्चा है, वो कहाँ खड़ा होगा? वो सबसे पीछे खड़ा होगा। तो बहरहाल खुलासा ये कि घर में आप जब नमाज पढ़ते हैं तो बीवी, बहन, बेटी, माँ और दिगर बच्चों को जमा कर लें और आगे आप इमाम बन जाएं, इस सबकी नमाज पढ़ाएं, ये बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई ममानियत नहीं है। लेकिन औरत इमामत नहीं कर सकती, इसका भी आप ध्यान रखें। सवाब की नीयत से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। दीजिए अपने दोस्त मौलाना एहसान को इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।